Hello folks, I welcome you all in our channel We Learn English. Hello everyone, welcome back to We Learn English Easily. As you all know that we have completed our grammar syllabus and reader syllabus. Now we are going to do some reading comprehension passage. Okay, so today in this video I'm going to tell you how to solve the questions of a comprehension passage. So first of all, let me tell you how will you start the comprehension passage. Okay, you will not have to start reading the passage directly. First of all, you'll have to see the questions, okay? You'll have to understand the meaning of the questions and then you'll have to start the passage, okay? It means, जब भी आप कोई पैसेज सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पैसेज के क्वेश्चंस को देखें। डायरेक्टली आप पैसेज पढ़ना शुरू नहीं करें, पहले क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपको हेल्पफुल रहेगा। आप जब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको पता होता है कि क्वेश्चन कौन सा था और जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, ओके? तो ये आपका टाइम बहुत बचाता है। ओके अब दूसरी बात ये है कि जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है आपको आंसर भी उसी टेंस में करना है। फॉर एग्जांपल, अगर जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट में पूछा गया है तो आप आंसर भी प्रेजेंट में ही देंगे। डजंट मैटर कि वो लाइन आपके पैसेज में प्रेजेंट में है या पास्ट में है, क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा गया है आप आंसर उसी टेंस में करेंगे। ओके, लाइक आई एम गोइंग टू टेल यू सम रूल्स। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डज द poet say? This is the question. As you can see in the question there is does. It means while answering the question you'll put verb first form with s or es. So we will write the answer. The poet says. Okay. If the question is what did the poet say? Did, it means you'll use verb second form while answering the question. So the answer will be the poet said. Okay, if there is ismr in the question then you'll use ismr in the answer. Was were then you'll use was were. Has have then you will use has have. Okay, it means जैसा question होगा, जिस tense में question होगा आप उसी tense में answer देंगे. Okay, so now we are going to do a comprehension passage, but that is a poem passage. Okay, on page number 133. Okay, but before doing the question and answer, what you'll have to do first, you'll have to write. If the passage is seen, then you'll have to write in capital letters unseen passage. Otherwise, you'll write only passage. As I have written poetry comprehension. Okay, now what will we write next? As you know, the passage is very big, so we can't write the whole passage. So what will we do? We'll write the first line of the passage and then the last line of the passage. Okay, so what is the first line? They took some honey. So we will write, they took some honey. Then dash dash dash. Last line, light of the moon. Light of the moon. Okay, so as I have told you that before doing a comprehension passage, first of all we'll have to read the question and answer. So let's read the question and answer. The owl and the pussy cat traveled on a ship. The pussy cat appreciated the owl's elegance. The turkey who lived in the jungle got the two of them married. The wedding ring was given by the piggy wig. Okay, these are true and false. What is next? You'll have write the meaning of these words that appear in the poem. Plenty, elegant, charmingly and willing. What is next? Answer these questions. Describe the owl and the pussy cat's journey on the boat. How did they find the ring? How did the owl and the pussy cat celebrate their wedding? Okay. Now let's read the passage. They took some honey and plenty of money. उन्होंने कुछ हनी लिया और पर्याप्त पैसे लिए. Wrapped up in a 5 pound note. और उनको एक 5 pound के नोट में रैप किया. The owl looked up to the stars above. जो owl था उसने आसमान की तरफ देखा, सितारों को या तारों को. Oh lovely pussy, oh lovely pussy my love. ओ प्यारी पुसी, पुसी माई लव, मेरे प्यार. What a beautiful pussy you are. तुम कितनी सुंदर पुसी हो. पुसी it means बिल्ली. You are, तुम हो, it means तुम बहुत सुंदर हो. You are, तुम बहुत सुंदर हो. What a beautiful pussy you are. तुम कितनी प्यारी और सुंदर बिल्ली हो.
पुसी सेड टू द आउल, अब पुसी ने किसको कहा? आउल, उल्लू को कहा, यू एलिगेंट फाउल। यहाँ एलिगेंट का मीनिंग है आकर्षक, अट्रैक्टिव, और फाउल इट मीन्स अ बर्ड। ओके, तुम कितने आकर्षक पक्षी हो। हाउ चार्मिंगली स्वीट यू सिंग, और तुम कितने प्यारे और मधुर तरीके से गाते हो। ओ लेट्स बी मैरिड, चलो शादी कर लेते हैं। टू लॉन्ग वी हैव टारिड, हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बट व्हाट शैल वी डू फॉर अ रिंग, लेकिन हम एक अंगूठी का क्या करें। मीन्स दे वर नॉट हैविंग अ रिंग टू गेट मैरिड। दे सेल्ड अवे फॉर अ ईयर एंड अ डे। दे सेल्ड अवे मतलब वो सेल इट मीन्स जल यात्रा करना। फॉर अ ईयर, एक साल, एंड अ डे, और एक दिन। टू द लैंड वेयर द बॉन्ग ट्री ग्रोज, उस लैंड पर गए, उस द्वीप पे गए जहां बॉन्ग ट्रीज उगते हैं। एंड देयर इन अ वुड अ पिगी विग स्टूड, वुड का यहाँ मतलब है जंगल, और उस लैंड पर जहां बॉन्ग ट्रीज उगते हैं वहां के जंगल में उन्हें एक पिगी विग मिला। पिगी विग इट मीन्स एक पिग स्टूड खड़ा हुआ विद रिंग एट द एंड ऑफ हिज नोज, और उसके नाक के अंतिम छोर पर एक रिंग थी, एक अंगूठी थी। हिज नोज उसका नाक, हिज नोज उसका नाक, विद अ रिंग एट द एंड ऑफ हिज नोज, उसके नाक के एंड में क्या है? एक रिंग है। डियर पिग, प्यारे पिग, प्रिय पिग, आर यू विलिंग टू सेल फॉर वन सीलिंग, क्या तुम एक सीलिंग के लिए अपनी नोज रिंग को बेचना चाहोगे? सीलिंग एक मुद्रा है जो केन्या वगैरह में चलती है, मीन्स द करेंसी। ओके, योर रिंग सेड द पिगी, तुम्हें रिंग चाहिए? सेड द पिगी, पिगी ने कहा, सुअर ने कहा, आई विल, तो मैं तुम्हें दे दूंगा। सो दे टुक इट अवे एंड वर मैरिड नेक्स्ट डे, इसीलिए उन्होंने क्या किया? उस रिंग को लिया एक सीलिंग में और अगले ही दिन शादी कर ली। बाय द टर्की हु लिव्स इन द, उन्होंने शादी में जैसे यहाँ पे प्रिस्ट होता है वैसे ही जब आउल और पुसी शादी कर रहे थे तो उन्होंने किससे शादी करवाई? टर्की से, जो हिल के ऊपर रहता है। टर्की एक बर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट इज द डाइंड ऑन मीन्स। द डाइंड ऑन मीन्स इट मीन्स उन्होंने खाना किसका खाया? मीन्स इट मीन्स मांस के छोटे छोटे टुकड़े करना, उनका उसने भोजन किया। एंड स्लाइसेस ऑफ क्विंस, उन्होंने खाने में क्या खाया? क्विंस के स्लाइसेस और क्विंस खाया। विच दे एट विद अ रंसिबल स्पून, और उस खाने को उन्होंने किसके साथ खाया? एक रंसिबल स्पून, इट्स अ टाइप ऑफ फोक। ओके, उसके साथ उन्होंने खाना खाया। एंड हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ डाले। ऑन द एज ऑफ द सैंड, और रेत पर। दे डांस्ड बाय द लाइट ऑफ द मून, और चंद्रमा की रोशनी में उन्होंने डांस किया। द मून, चांद, द मून वो चांद। दे डांस बाय द लाइट ऑफ द मून, उन्होंने चंद्रमा की रोशनी में डांस किया। ये एडवर्ड लियर के द्वारा लिखी गई है। ओके, नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन एंड आंसर। मार्क ट्रू T एंड फॉल्स F। द आउल एंड द पुसी कैट ट्रेवल्ड इन अ शिप, जो आउल है और वो जो कैट पुसी है वो एक शिप के द्वारा ट्रेवल करके जाओ। इट्स फॉल्स। ओके, विल राइट F फॉर इट। आंसर A, and in first we'll write F. Okay, what is next? The pussycat appreciated the owl's elegance. Pussycat ने जो owl था उसकी elegance, उसकी जो attractive, वो जितना attractive था उसकी उसने तारीफ की। तो this is true, उसने उसकी तारीफ की। We'll write T for it. What is next? The turkey who lived in the jungle got the two of them married. Turkey जो कि hills में रहता था, उसने उन दोनों की शादी करवाई। किसकी शादी करवाई? आउल और पुसी की। So this is true. What is next? The wedding ring was given by the piggy wig. जो wedding ring थी वो किसके द्वारा दी गई थी? पिगी विग के द्वारा। So this is also true. We'll write T for it. Okay, what is the next question? We'll have to write the meaning of these words. Those appear in the poem. So the first word we have, that is plenty, a lot of. Okay, answer number B. In first, a lot of. Okay, what is next? Charmingly. They can be more synonym, but I'm writing it delightfully. Delightfully. Okay, what is next? Elegant. So I'm writing graceful. Okay, what is next? Willing, it means इच्छा जताना. Okay, so here we will write ready. Okay, now we will do the question and answer. Okay, the first question we have, that is, describe the owl and the pussy cat's journey on the boat.
जो पुसी कैट है और जो आउल है वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं? वो एक लैंड पर जाते हैं एक रिंग ढूंढने के लिए। तो वो जो हमें ट्रेवल है उनका वो एक्सप्लेन करना है। ओके, सो सी फर्स्ट द आउल एंड द पुसी कैट sailed in their boat for a year and a day. ओके, जो पुसी कैट है और जो आउल है वो एक नाव में लगभग 1 साल और 1 दिन के लिए जाते हैं। They carried with them some honey and plenty of money. Okay, और वो अपने साथ थोड़ा हनी और पर्याप्त मात्रा में पैसे लेकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड दे फाइंड द रिंग? उनको रिंग कैसे मिली? द आंसर इज they sailed to the land of Piggy-Wig, who sold them his ring for 1 shilling. Shilling, as I have told you, it's a currency. Okay, what is our next question? How did the owl and the pussy cat celebrate the wedding? जो owl है और जो cat pussy है वो कैसे अपना wedding जो है वो celebrate? Answer is they dined the mince and slices of quince and danced on the beach in the moonlight. ओके, वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं? खाने में वो क्या खाते हैं? मिंस खाते हैं, स्लाइसेस ऑफ क्विंस खाते हैं और वो एक बीच पर मूनलाइट में डांस करते हैं। ओके, दैट्स इट स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड आवर पैसेज, होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, फॉर द लेटेस्ट वीडियो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।